In the previous video, we have completed the circulatory pathway, circulatory pattern that is open and closed. Now in this video, we are going to learn the another important that is human circulatory system. तो देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गन से बनी हुई है. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट muscular chambered heart, then the fluid that is the blood, and third one is the closed network of blood vessels. इन तीनों से बनी हुई है. कौन से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर वन हार्ट. हार्ट कैसा है? हार्ट इज मस्क्यूलर मस्क्यूलर एंड चेम्बर्ड. Heart is muscular and chambered. Second, it consists of the blood. And blood क्या है? तो fluid है. Blood is a special connective tissue fluid and which is circulating. ये fluid ही circulated होता है throughout the body. And last one is that is the blood vessels. That is the closed network present in our body, जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी एंड ड्यूरिंग दैट सर्कुलेशन exchange takes place, exchange of respiratory gases and exchange of nutrients. So very simple. Human respiratory system, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसे कहते हैं blood vascular system. The second name for human circulatory system is blood vascular system. कितने ऑर्गन्स हैं? हार्ट विच इज मस्कुलर एंड चेम्बर्ड. चेम्बर्ड है तो कितना है? 4 चेम्बर्ड. मस्कुलर मतलब इट इज मेड अप ऑफ मसल, सो इट इज नोन एज द मायोजेनिक हार्ट. ब्लड इट इज अ फ्लूइड एंड विच इज सर्कुलेटेड. ब्लड वेसल्स जिनका क्लोज नेटवर्क है एंड जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इसमें से वी लर्न द फर्स्ट that is heart. And heart कैसा है? Muscular, 4 chamber. So we'll discuss the internal structure of the human heart. Next is internal structure of human heart. हमारे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर. उसमें से सबसे पहला पॉइंट सब इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स विल डिस्कस. फर्स्ट, हार्ट कहां से डिराइव्ड है? तो हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड. मेसोडर्मली डिराइव्ड मतलब हमारे बॉडी में 3 जर्माइनल लेयर्स होते हैं. वन इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो हार्ट कौन से जर्माइनल लेयर से बना हुआ है? मेसोडर्म. हेंस हार्ट इज मेसोडर्मली derived. कहाँ है? Where heart is found in our body? It is situated in the thoracic cavity, in between 2 lungs. 2 lungs के बीच है. And heart is attached to the left lungs through the cardiac notch, and it is slightly tilted towards the left. So second is कहाँ है? So it is situated in thoracic cavity. कहाँ है? Situated in thoracic cavity. In between 2 lungs. हमें पता है 2 lungs है. कौन से 2 lungs है? One is right lungs and one is left lungs. तो ये हार्ट जो अटैच है, it is attached to the left lungs through cardiac notch. Cardiac notch. Right. तो कहाँ situated है? It is situated in the thoracic cavity in between 2 lungs and attached to left lungs through a notch, and उसे कहते हैं cardiac notch. And it is slightly tilted towards the left. Left की तरफ जाता है. And then
साइज कैसा है? द साइज ऑफ द हार्ट इज क्लेंच्ड फिस्ट। कैसा है? क्लेंच्ड फिस्ट। फिस्ट जैसा कि दिस इज द फिस्ट, टाइट क्लेंच्ड फिस्ट। मतलब साइज कैसा है? इट इज एग्जैक्टली सेम विद द साइज ऑफ टाइटली फिस्ट ऑफ नॉन वर्किंग हैंड, एंड उसे कहते हैं साइज इज क्लेंच्ड फिस्ट। तीसरा, चेम्बर्ड है, तो चेम्बर्ड कितने हैं? इट इज 4 चेम्बर्ड। कितने हैं? 4 चेम्बर्ड। एंड 4 चेम्बर्ड में हमें पता है 2 आर ऑरिकल्स एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स है एंड 2 वेंट्रिकल्स है। ऑरिकल्स जो है वो स्मॉलर है, रिलेटिवली स्मॉलर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स आर लार्ज। ऑरिकल्स का काम क्या है? ऑरिकल्स रिसीव द ब्लड, auricles receive the deoxygenated blood and oxygenated blood. So auricles are also called as receiving chamber, क्योंकि वो ब्लड रिसीव करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? रिसीविंग चेम्बर्स। Two auricles, right? This is all about the some introductory idea about the heart. Number one, कैसा है? Mesodermally derived, situated in the thoracic cavity in between two lungs, लेफ्ट लंग से थ्रू कार्डियक नॉच अटैच है। साइज कैसा है? तो टाइट फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट, एंड कैसा चेम्बर है? तो 4 चेम्बर। Two auricles, 2 ventricles. Auricles are relatively smaller than the ventricles, so ventricles are large. Auricles receive the blood, both oxygenated and deoxygenated, so it is receiving chambers, right? अब ये होने के बाद we'll discuss उसका स्ट्रक्चर कैसा है थ्रू डायग्राम, हाउ हार्ट्स लुक लाइक, राइट? कैसा दिखता है, कौन से स्ट्रक्चर उसके बॉडी अंदर है। तो हार्ट, यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम निकालता हूँ। दिस इज द हार्ट which is slightly tilted towards the left. इसको थोड़ा रफ बनाना है। डायग्राम भी आपको आनी चाहिए, जिन लोगों का डायग्राम अच्छा होता है, क्योंकि नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये चैप्टर है जहाँ पे आपको ज्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो दिस इज द हार्ट एंड द वॉल्स होते हैं हार्ट के, द वॉल्स ऑफ द हार्ट्स आर irregular. Irregular means it show the ridges, some small ridges, large ridges. So this is कैसा है? हार्ट का वॉल जो है that is irregular and show the ridges, smaller ridges, larger ridges, like that, right? Smaller, larger, right? All that. So these are the walls of the heart. अब हार्ट का जो है, तो in between there is a partition. These are the flap-like structure. This is a flap-like structure. ये यहाँ से आता है. This is also right. Right. So these are the flap-like structures. इसको थोड़ा कम करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा. Right. So this is the wall of the heart. So big ridges, small ridges. Right. अब देखो. These are the two auricles. दो auricles हो गए. इसको यहाँ पे लेबल करता हूँ. This is right. Sorry. This is left auricle. Short form use करता हूँ so that we can label all that. This is obviously क्या होगा? Right auricle, left auricle, right auricle. Auricles के नीचे respective, these are left ventricles, and right के नीचे these are right ventricles. So 2 auricles and 2 ventricles, 4 chamber, right?
अब ये पूरा होने के बाद कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, मैंने पहले कहा कि ऑरिकल्स में क्या है, तो ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चेंबर्स। अब दो ऑरिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए थ्रू द सेप्टम, एंड दिस इज ए सेप्टम कैसा है, इस सेप्टम को कहते हैं, दिस इज थीन एट्रियल, थीन एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम यानी partition, right? Because of this partition, the auricles are separated and becomes two. इस पार्टीशन को सेप्टम को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थीन एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। कैसा है, थीन है, कौन सा, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, नॉट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको करेक्ट करेंगे। दिस इज द सेप्टम, दिस इज, उसे कहते हैं थीन है, बट कैसा है, थीन इंटर, दो ऑरिकल के बीच है इसलिए इंटर, थीन इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट, इन इंटर एट्रियल सेप्टम, सेपरेट हुआ। उसी तरह से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम, एंड ये सेप्टम कौन सा है, दिस सेप्टम इज थिक है, कैसा है, थिक, कौन सा है, दो के बीच है, इसलिए वंस अगेन इंटर, बट इन बिटवीन टू वेंट्रिकल्स है, सो इट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। तो कितने सेप्टम हुए, दो, दिस इज फर्स्ट इंटर एट्रियल सेप्टम, दो ऑरिकल्स बन गए, दिस इज इंटर, ठीक है, ये ठीक है, ठीक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं ठीक ठीक पे ज्यादा भर दे रहा हूं इसलिए कि नीट वाले एक ही वर्ड चेंज करते हैं, जैसा कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट, यहाँ ठीक की जगह ठीक लिखते हैं, तो एट दैट टाइम our questions नहीं जाना चाहिए, we should solve it, right? So ठीक interventricular septum। अब यहाँ पे there is also the one septum जो ऑरिकल को वेंट्रिकल से डिवाइड करता है, and that septum, ये जो septum है, that septum is thick, fibrous, thick, fibrous, atrial, atrial, ventricular, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच है, इसलिए उनको कहा है ठीक है, फाइब्रस के जैसा है, थिक फाइब्रस, ये वाला, राइट, थिक फाइब्रस, यहाँ पे उसको क्या कहा है, थिक फाइब्रस एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम which divides auricles and ventricles, so three septums, interatrial septum, interventricular septum, thick fibrous atrial ventricular septum, ये पूरा हो गया, राइट। अब इसके बाद में ऑरिकल्स में क्या होता है, तो ब्लड आता है, तो ब्लड कहां से आता है, दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट ये है राइट ऑरिकल्स, एंड राइट ऑरिकल्स में ऑलवेज कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, it always receive deoxygenated blood, whereas left auricles always receive oxygenated blood, right? अब यहाँ पे जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सो दिस इज वन, हम उसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, एक नीचे से आती है, एंड दिस इज, इसको कहते हैं इंफेरियर वेना कावा, राइट। कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कहां से आता होगा, डेफिनेटली फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में ब्लड से ऑक्सीजन लेने के बाद दैट ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, एंड दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है, सुपेरियर वेना कावा, कहां से कलेक्ट करती है, इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स,
कहाँ से कलेक्ट करती है? कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, whereas inferior vena cava कहाँ से कलेक्ट करती है? फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, राइट, लोअर बॉडी पार्ट्स। तो सुपीरियर मतलब अपर बॉडी पार्ट्स एंड इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है। इसके अलावा हार्ट का फंक्शनिंग करने के लिए हार्ट को भी ब्लड लगता है, वो सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। एंड हार्ट के मसल में ब्लड ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है दैट इज कलेक्टेड, एंड यहाँ पे सिर्फ हमें ओपनिंग दिखती है एंड उसे कहते हैं कोरोनरी साइनस। उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस, राइट। मतलब हार्ट के मसल में ब्लड यूज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दैट इज थ्रू कोरोनरी साइनस। So right auricle में deoxygenated blood, superior vena cava, inferior vena cava from different body parts, and coronary sinus from heart muscles. पूरा body का deoxygenated blood यहाँ पे कलेक्ट। That is number one. अब लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड आता है? तो उसके पहले ये जो inferior vena cava है, that inferior vena cava is guarded by the one wall. एक उसके ऊपर वॉल होता है एंड दैट वॉल इज वॉल ऑफ Eustachian, वॉल ऑफ Eustachian। यहाँ पे एक वॉल होता है, यहाँ पर भी एक वॉल होता है एंड उस वॉल को क्या कहते हैं? वॉल ऑफ Thebasian, Thebasian, वॉल ऑफ Eustachian इंफीरियर वेना कावा को एंड वॉल ऑफ कोरोनरी साइनस का दैट इज द वॉल ऑफ Thebasian। अब वॉल का काम क्या होता है? वॉल का एक ही काम होता है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल का काम क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अ स्पेशल केस। क्या काम करती है वॉल? जस्ट टू प्रिवेंट कौन सा? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल का काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। मतलब एक बार वॉल आता है राइट ऑरिकल में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो दैट शुड नॉट बी बैक टू द इंफीरियर वेना कावा, दैट शुड नॉट बी बैक थ्रू द कोरोनरी साइनस। इसलिए यहाँ पर क्या है? वॉल है, वो क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है। अब दिस जो है इंफीरियर वेना कावा जो है इट इज विदाउट वॉल। कैसा है? विदाउट वॉल, उसको कोई वॉल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट एंटर्स इन सच अ वे दैट कि अगर वेन ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ये एंटर्स इन सच अ वे दैट ये ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि ऐसा, तो इट ओपन्स ऐसे है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट क्लोजेस बाय इट्स ओन, अपने आप इसका ओपनिंग क्लोज होता है। सो इट इज विदाउट वॉल। सो दिस इज द थिंग व्हिच ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल्स। अब नाउ विल सी दिस लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आता है? रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? फ्रॉम द लंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ फोर पल्मोनरी वेन्स। दीज आर टू, क्या है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या है? कहां से? pulmonary veins brings the oxygenated blood from lungs to pulmonary and तो कितने pulmonary veins होते हैं? टोटल 4, 2 from each lungs and हमें पता है कि we have 2 lungs, 2 lungs होते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो 2 from each, यहां से आते हैं हमें उसका वेन्स नहीं दिखती बट we can see only the opening। So 4 pulmonary veins. And another important, like superior vena cava,
pulmonary veins are also without wall. They are also as well as without walls. उनमें वॉल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इनका ओपनिंग ही ऐसा है कि व्हेन ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट दे क्लोज. ऐसा है व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट तो इन लोगों का ओपनिंग अपने आप क्लोज हो जाता है. सो इट इज नोन एज without walls. They are without walls. So four pulmonary veins, two from each lungs, collect the oxygenated blood. In this way, the blood यहाँ से यहाँ आता है. अब देखो कि जो ऑरिकल्स यहाँ ऑरिकल का ब्लड एंटर्ड इट इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला जाएगा. बट ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर वॉल्स है. यहाँ पर भी वॉल्स. ये जो वॉल्स है राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्स है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राइकस्पिड मतलब उसके अंदर 3 कस्प है. 1 2 3 कस्प. इसलिए उनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. एंड यहाँ पे जो वॉल है दैट इज इन बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल. यहाँ पे ओनली 2 कस्प है. 1 2 अगर उसका सेक्शन हमने देखा तो इसलिए उसको बाइकस्पिड वॉल. एंड बाइकस्पिड वॉल को भी दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल. क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 ऑरिकल्स. अब लास्ट वन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो यहाँ से एक सिस्टेमिक आवर्टा निकलता है. ब्लू कलर से लिखा सिस्टेमिक आवर्टा निकलता है. एंड विच टर्न टू द लेफ्ट. तो लेफ्ट की तरफ जाता है. राइट लेफ्ट की तरफ जाता है. एंड विच सप्लाई द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. उसको लेबल करेंगे. इसको लेबल यहाँ पे करता हूँ. कौन सा? दैट इज सिस्टेमिक. सिस्टेमिक एओर्टा क्या करता है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. राइट. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड रीच टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन प्यूरिफिकेशन. तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है. यहाँ आने के बाद डिवाइड होती है. वन गोज टू दिस साइड एंड वन गोज टू दिस साइड. दिस इज इसको लेबल करते हैं. इसको यहाँ पर लेबल करना हो दैट इज रेड कलर का. उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. क्या है वो? पल्मोनरी आर्टरी. एंड व्हिच सप्लाई द ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. अब ये दोनों के दोनों जो है pulmonary artery this and systemic aorta, it is also provided with the walls. And this wall, ये जो wall है उसे क्या कहते हैं? This wall is called as semilunar wall. Semilunar wall. वॉल का क्या है? वॉल का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. राइट. to prevent the backward flow of the blood. So this is. अब देखो वॉल जो होते हैं हार्ट्स के, ऑरिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं क्योंकि उनको ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ही ऐड करना पड़ता है. वेंट्रिकल्स के वॉल एज कंपेयर टू ऑरिकल्स थिक होते हैं. क्यों? राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द लंग्स जो बाजू में होती है.
इसलिए उनके थिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल होते हैं दीज आर 3 times थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट टू नीड द प्रेशर, इसलिए उनका वॉल्स जो होते हैं उनके वॉल्स जो होते हैं 3 times thicker than the right ventricles, right? So this is all about the internal structure of the heart. वॉल्स याद रखने हैं एंड कौन कौन कहाँ से ब्लड लेके जाता है। So in the next we'll discuss the functioning of the human